So hey guys, for those who know me and don't know me, hi, my name is Anand Bhatia and welcome back to Cloud with Bhatia Saab. As you have seen by the thumbnail और टाइटल पढ़ लिया होगा वीडियो का कि किस बारे में है, तो इस चैनल का वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट इज गोइंग लाइव ऑन द चैनल. तो ये किसके साथ है, कौन है ये जो पॉडकास्ट पे पहली बार आ रहे हैं. सो एक स्मॉल सा इंट्रो के बारे में. सो प्लीज वेलकम आशीष कुमार एज एन सीटीओ ऑफ क्लाउडजेनिया, द CNCF न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजर एंड द AWS कम्युनिटी बिल्डर. So he's a very special friend, close person to me. तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया काफ़ी एक छोटे स्पैन टाइम में. उनसे मैंने चीज़ें बहुत सीखी, उन्होंने मुझसे बहुत चीज़ें सीखी. हमने अपनी चीज़ें शेयर करी, कनेक्टेड रहे, बातचीत चलती रही. बट अब कैसे उन्होंने छोटी सी एज में एक क्लाउड कंपनी को एज एन CTO लेवल पे ज्वाइन करके स्टार्टअप को ऐसा बिल्ड कर दिया कि अब वो और दूसरे मीडियम साइज बिजनेस को, एंटरप्राइज लेवल बिजनेस को क्लाउड एडॉप्शन में हेल्प करते हैं. क्या उनके इंटेक थे, क्या उनके चैलेंजेस थे, हमें जानते हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट. और उनके क्या चैलेंजेस थे जो उनको इस लेवल पर पहुंचा पाए, और क्या आप स्टेप्स क्या ले सकते हो एज एन नाउ इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स है या दूसरे कोई डोमेन से स्विच करना चाहते हैं इन क्लाउड एंड डेवऑप्स. सो लेट्स टेक द इनसाइट्स फ्रॉम आशीष एंड लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट. जैसे कि आप जानते हैं कि ये कौन है, बट स्टिल इनको इंट्रोडक्शन दे देते हैं. सो प्लीज़ वेलकम आशीष कुमार एज एन CTO ऑफ क्लाउडजेनिया. थैंक यू. और भाई कैसे हो आप? बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप फॉर द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट फॉर दिस चैनल. बहुत टाइम से प्लान था, बट स्टिल एनी हाउ वी मैनेज टू कम हेयर. सो मैंने तो इंट्रो पता है आपके बारे में, बट स्टिल आप थोड़ा कुछ बताएंगे अपने बारे में सो दैट ऑडियंस शुड नो. Okay, so CTO would be an oversight. That's just a title for me. So what I majorly do is DevOps, SRE, thorough development, and as a CTO, I manage folks, do some hiring. बस ये चल रहा है. एंड अगर हायरिंग चल रही है तो कुछ है टिप्स आजकल के ग्रेड्स के लिए, एज यू नो अबाउट द मार्केट ट्रेंड्स. स्टिल ले ऑफ इज गोइंग ऑन, सो द ग्रेड्स ऑफ 2024 आर नॉट सीकिंग द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, डेवऑप्स एंड SRE. सो आपका उस पर क्या इंटेक है एट प्रेजेंट अभी? I have talked to a couple of people who are hiring, and also I am also personally facing this issue कि लोग cloud पढ़ ले रहे हैं but they are missing out on the basics. They want to work on AWS, they want to work on GCP, but the thing is they have not done the basic networking thing और OS thing. They should, मतलब कॉलेज में जब सब्जेक्ट होता है ना नेटवर्किंग और OS, थोड़ा ध्यान से पढ़ो उसको, क्योंकि अगर उसका आइडिया होगा that would help you a lot in longer term. Right. And of course try to do as much hands on as possible, क्योंकि आज के टाइम पे you have a lot of free playgrounds available. Right. So practice as much as possible and then go for interviews. You would have a much better chance then. Right. So in terms of like getting folks, like does college matter, like tier 1, tier 2, tier 3 right now for this year situation? Does it is getting triggered for that tiers college? Like Big Fang is a different thing. Obviously, Big Fang are obviously targeting the tier 1 college, but still the off-campus role. So how the students or the grads who are currently unemployed for this year, how they should target the market? So directly applying or with the help of reference or directly reaching out to HR, or on which platform? What do you suggest on that point? Okay, so I personally suggest do a lot of networking, because people I hire or work with, I would say, are mostly whom I have known for a while. 6 महीने 7 महीने जान लिया, had some conversations, not about hiring, general बातें हो रही है, they are doing something, they are showing it to me, and then one day it strikes me, okay, we can work with him, and I just offer it from my side. We also do regular hiring, normal processes, जहाँ पे we give them hands on and then we take interviews, but the thing is वहाँ पे it's a very different game over there, and over there what we see is like we are putting in barriers now in hiring. So what we do is, let's say we give a hands-on thing and it has a very high drop-off rate. 50 लोगों ने अप्लाई किया, we send them hiring task and देख रहे हैं कि 4-5 का रिप्लाई आ रहा है. इंटरव्यू के लिए सब रेडी है, but there no one is willing to do the hands-on task and then get on to interview. Okay. I think you should be persistent on that part. Every company has a different way of hiring, but हाँ अगर आता होगा सही से, no one cares about, like we personally and people I talk to do not even ask about college. आज तक मुझसे करियर में किसी ने कभी कॉलेज के बारे में नहीं पूछा. Totally. And I have been doing pretty good by what I understand.
टोटली आई टोटली एग्री विद दैट पॉइंट, बट स्टिल लाइक जो फोक्स है एट प्रेजेंट जिसने अभी कॉलेज हम जैसे जानते हैं कि हमारे सब सेमेस्टर में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ऊप से स्टार्ट, सी से स्टार्ट किया, क्लाउड आते आते या स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन ले जाते हैं तो वो IBM में या ब्लॉकचेन्स के अंदर, अब तो क्लाउड भी आ गया, बट स्टिल क्या कॉलेज उस वे से हमें सिखा पा रहा है कि हम इंडस्ट्री लेवल रेडी हो जाए डायरेक्ट अगर इंटरव्यूज़ में बैठे, तो क्या उस पर बात करेंगे हम कि मतलब कॉलेज सही से वे से ले जा रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को दूसरे वे से ट्राई करना चाहिए, बिकॉज कॉलेज में पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड जब डेली टास्क आते हैं या जब हम उस लाइव इन्वायरमेंट में जाते हैं तो क्या वो हमारी लर्निंग हमें हेल्प कर रही होती है एट प्रेजेंट कि नहीं? I think colleges are doing pretty well. A lot of people bash कि college सही से नहीं कर रहे, but I think they are doing pretty good with that, and they are changing with landscape. So when I was in college, हमारे टाइम पे ये specializations introduce हुए थे हमारे कॉलेज में. They came with IoT specialization, they came with cloud specialization and other like these. And what they do is वहाँ पे they would give you a glimpse of basic. They would not give you advanced thing. उसके बाद एक ये चीज़ भी होती है ना कि आप अपने एंड से कितना करते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट फाइनली मैटर्स. राइट. कोई पढ़ाएगा आपको एक लिमिट तक, आप कोर्स भी करोगे वो पढ़ाएगा, उसके बाद आपको हैंड्स ऑन करना, उस पर और रिसर्च करना, दैट इज ऑन टू यू. सो लेट्स से अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई कॉलेज में अभी भी वो आउटडेटेड चीजें पढ़ा रहे हैं, बट वो जो आउटडेटेड चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें वो बेस बनाती है इनका भी. दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. आप चाहे ऑन प्रेमिसेस पे हो चाहे आप क्लाउड पे हो, ओएस तो वही रहेगा. यू आर इंस्टॉलिंग दैट सेम लिनक्स और यूनिक्स मशीन. नेटवर्किंग, although it becomes easier on cloud, but you should know ना कि VPC CIDR क्या है, उसके अंदर सबनेटिंग कैसे काम करती है, how do packets travel, what is L4, what is L7, ये बहुत बेसिक चीजें हैं. A lot of people get confused in this also. And then when in colleges, I think हमारे कॉलेज में क्या था, so we had this, I think AWS का जो स्टूडेंट वाला सब्सक्रिप्शन होता है, they had given us that and do practitioner course, and if you do certificate, I think उसका they would give some refund on that. And that was a very good way to promote की करो. And those who wanted to did it. Like मेरा पहला सर्टिफिकेशन वहीं से आया था, 50% खुद के दिए, 50% कॉलेज ने दे दिए, तो we were able to clear out our exam very easily. And वो एग्जाम आपको बेसिक पढ़ा देगा. So that was the practitioner course. And then फिर you do some hands on, read a lot of videos, blogs. Like मेरे लिए वही सोर्स है. I cannot read books, but I read a lot of blogs. And खुद ही चीजें फाड़ो, ब्रेक अवे करो. और other option to learn is go to these general, there are a lot of community groups happening. बहुत लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स बना के रखे हैं. उसमें लोग रैंडमली आके पूछते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड फेसिंग दिस इशू. आपको नहीं भी आता होगा, रेज योर हैंड. एक मतलब आई यूजुअली व्हाट आई डू इज मेरे को चैट करना इज नॉट दैट कंफर्टेबल फॉर मी, तो मैं क्या बोलता था यूजुअली पहले कि लेट्स हॉप ऑन अ कॉल क्विकली डीएम में उनके, एंड दे वुड कम ऑन अ कॉल, चाहे मैंने उस पर काम किया नहीं भी हो तब भी चलेगा, एंड साथ में गूगल कर रहा हूँ. दैट इज हाउ आई बिल्ट माई डिबगिंग स्किल, बिकॉज मेरा मानना ये, इफ यू आर एबल टू डिबग एनीथिंग ना, इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको, बिकॉज डिबगिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन माय ओपिनियन. तो एज यू से लाइक हॉप ऑन अ कॉल, ये भी मेरा डे टू डे टास्क है. लाइक मैं एज एन अभी सपोर्ट में भी हूँ, कई वक्त ऑल ओवर इंडिया ईमेल मार्केट के जो हमारे स्मॉल SMB मार्केट में है, उनके इश्यूज आते हैं जो मैंने हार्डली आज तक कभी सुने भी नहीं है, बट जो आते हैं तो मीन टाइम मेरी स्क्रीन स्प्लिट रहती है या मैं मल्टी स्क्रीन में चेक कर रहा होता हूँ कि उनकी क्वेरी है एट प्रेजेंट क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो वो एक प्रैक्टिस दे देते हैं हमें. बट एज यू ऑलरेडी सेड कि सर्टिफिकेशन आपने अपने कॉलेजेस में दे दी, कॉलेज है रिम्बर्स दैट थिंग, बट अगर मैंने मार्केट में कई चीज़ ये भी अभी देख रहा हूँ, लाइक पीपल आर प्रोफेशनल सर्टिफाइड in either of the cloud providers, in DevOps expert or like in GCP also but जब उनको like इंटरव्यू पे लेके आओ, बट उन्हें पता चलता है दे आर स्टिल कंफ्यूज व्हाट इज़ VPC, व्हाट इज़ VNet, लेयर 3 लेयर 7 पे, लेकिन अभी भी वो हम्बल करते हैं, लव करते हैं कि बट तो फिर क्या सर्टिफिकेट ऐसे ही क्लियर करना इज़ गुड और इट्स बैड, लाइक व्हाट्स योर टेक अबाउट दैट? आई थिंक दिस इज मोर लाइक एवरीवन के लिए सबके अलग अलग जवाब होंगे मेरे हिसाब से, बट लाइक मी आई हैव ओनली, मतलब मैंने करियर की शुरुआत में 2-3 सर्टिफिकेशन निकाल लिए रेड हैट के. आई डोंट थिंक इट माइट हैव हेल्प्ड मी इन अ वे, बट उसने मेरी डिफिकल्टी उतनी बढ़ा दी थी, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो टू एन इंटरव्यू, उनको लगता था कि भाई इसको तो अभी RHC ऐसे RHC ही है, तो ही शुड नो एंसिबल, ही शुड नो लिनक्स. अब जो इंटरव्यू के क्वेश्चन वो लेवल 100 के पूछने वाला था, वो 300 पूछता था. दैट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर मी. सो इफ यू आर हैविंग सर्टिफिकेशंस, यू मेक श्योर यू कैन जस्टिफाई देम. If you cannot justify them, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो एक ऐसा गेम है that can go with you if you can justify it. If you cannot, वो आपके अगेंस्ट जाएगा and then it will become a bad game. तो वही do hands on before you go certified, because this is an open secret now कि dumps available है बहुत सारे, people cramp them, रट लिया उसको और जाके फिर दे दिया एग्जाम.
एंड सर्टिफाइड हो रहे हैं सीरीज में, Certified लाइक हो रहे पीपल वर्किंग इन ऐसे डोमेन जिनका डेटा से कोई रिलेशन नहीं है एंड दे आर क्लियरिंग डेटा इंजीनियरिंग एग्जाम. हैं. So I think they should do some hands-on, learn about those services, and then give that exam. I think that would be very helpful. It would take time. So for me, I usually try to do a certification in 3 months or 6 months, क्योंकि अपना काम भी रहता है और जो टाइम बचा धीरे धीरे करके we study for our certification. I have a long list जो मुझे करने हैं अभी भी, but of course work comes as the priority and then comes the certification. राइट, टोटली अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम फ्रेम कि टाइम बहुत कम है, अपने KPIs मीट करने होते हैं, फिर जाके अपने सेल्फ टाइम से भी निकाल के पढ़ना है. Right. बिकॉज क्योंकि सब मुझसे आजकल भी पूछते हैं कि क्या पाथ होना चाहिए, तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि लाइक कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, बिकॉज रीडिंग से ये होता है कि हम एक तो चीज़, अगर हम नई टीम में जा रहे होते हैं तो हमें कोई स्पून फीडिंग नहीं करवा रहा होता कॉलेज की तरह. वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे जो ऑलरेडी सीनियर्स ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे होंगे, हम पढ़े उन्हें समझे, इम्प्लीमेंट करें और फिर अपना डाउट लेके जाए. बट कॉलेज ग्रेड को यही एक सिचुएशन आती है, दो आई डोंट से लाइक सम आर very star out of them who knows more than me. Even nowadays they are more even like doing various other things except for me, because मेरा एक स्पेसिफिक हो गया कि मैंने क्लाउड ले लिया था स्टार्टिंग में, Azure फॉर एग्जांपल माइन, तो आपका AWS था, यू ऑलरेडी मेंशन. तो मेरा स्पेसिफिकेशन और मेरी स्पेशलिटी उस साइड जा चुकी है. बट मार्केट में अभी भी जब पूछो कि कंपनी स्टिल आर हायरिंग, दे प्रेफर AWS ओनली, नॉट Azure ओवर GCP. तो आप इसमें क्या कहेंगे, क्यों मार्केट ऐसा है कि हम तो बोलते हैं कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर ले लो, पढ़ लो, और बाकी सबकी टर्मिनोलॉजीज फर्क है, बाकी वे ऑफ वर्किंग अंडर द नेट तो सेम ही है. I would say almost same है, but yeah, this is जनरल कंसेप्शन बोलूँ, मिसकंसेप्शन कि टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है. नहीं, कुछ कोर चीज़ें भी चेंज हो जाते हैं मेरे हिसाब से. लेट्स टेक एन वेरी बेसिक एग्जांपल. AWS में व्हेन यू क्रिएट VPCs, हर रीजन में आप एक बनाते हो, उसके अंदर सबनेट्स होते हैं, तो हर एक रीजन का VPC अपने आप में एक प्राइवेट नेटवर्क है. यू गो टू GCP, वैसा नहीं होता. यू क्रिएट अ VPC अकाउंट वाइड और सबनेट्स हर एक रीजन में बनते हैं. सो difference. So you should understand these are also big differences that come up. But लेकिन हाँ, एंड द एंड वो सारा नेटवर्किंग कैसे करना है, वो सारी चीजें एक टाइम के बाद वो एक टर्मिनोलॉजी में ही है. एंड यू स्टडी एनी क्लाउड, वो आपके ऊपर है, बिकॉज वही है, एवरी कॉलेज इज पार्टनरिंग विद एवरीथिंग, एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू गिव फ्री सर्टिफिकेशंस वगैरह वगैरह, तो पीपल गेट लियो टुवर्ड्स दैट क्लाउड. यू शुड डू विच एवर यू लव. लाइक मी पर्सनली, मैंने AWS शुरू किया, बट आई कैन से आई कैन वर्क ऑन GCP ऑल्सो एंड Azure ऑल्सो, एंड आई डू वर्क विद देम. तो with time, as experience builds, as you work more, you get comfortable with all three. But yeah, कोई एक वो starting point होना चाहिए ना. For me AWS, for you it was Azure. तो it's a personal choice. I do not say कि इसी के लिए करो या इसी से करो. It's up to you. तो आप जैसे आपको बता दिया कि आप कई बार डाउट आता है कि किस क्लाउड से, यू कैन स्टार्ट विथ एनी क्लाउड. स्टार्टिंग डेज सबके लिए फ्री है, बट Azure आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल 30 डेज फ्री देता है. आप उस मीन टाइम में पहले उसको गो थ्रू कर लो, उसकी सर्विसेज के बारे में समझ लो, बाकी एक साथ डिप्लॉय करो. बट डोंट जस्ट फॉलो द वीडियो ट्यूटोरियल्स, जस्ट अंडरस्टैंड द लाइन बेसिक, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके गो थ्रू करोगे तो आपको ईच बाई सेक्शन समझ आएगा. अच्छा ये लॉजिक था, अगर मैं क्लाउड में, अगर मैं एक क्लाउड इंजीनियर तो मेरा रोल क्या आ जाता है. वही जैसे कई हमारे डिफरेंस आता है दैट people are just directly starting from college as a DevOps engineer. So should it be like good path to directly start as a DevOps, or firstly like start with like some Linux administrator or cloud engineer, then moving to SRE or DevOps? So this is a very again थोड़ा क्या बोलते हैं controversial वाली चीज हो जाती है फिर. So like last weekend में एक meetup में था, and the AVP of Baazi Games, Siddharth Vijay, was there. He was giving a talk. And I had asked him a general question, and he was explaining something about the deployments. And then something strike to me, and then we had a discussion, short discussion, ki what he said na, that was DevOps. Not like most people, even we are mostly doing operations. DevOps is a thing जहाँ पे someone is doing both. DevOps इसलिए पैदा हुआ था. Right now it has become कि operations अलग कर रहा है, development अलग कर रहा है, और ops वालों को DevOps बुला दिया है. That is now how it should work, because it should be more combined thing. Let's say a good example that he gave the other day was कि when you deploy your application, लॉगिन और जो पेमेंट वाला चीज होता है वो साथ में डिप्लॉय होना चाहिए. क्योंकि मान लो पेमेंट फेल हो गया और लोग लॉगिन कर पा रहे हैं, वो लोग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे ना. रियल मनी वाला फंडा है यहाँ पे, तो पैसे की बात है, तो ये दिक्कत हो जाएगा. तो यहाँ पे डेवलपमेंट का अगर आइडिया होगा कि क्या किसका डिप्लॉय होना है, तभी आप करोगे ना वो चीज. तो आई थिंक यू शुड, फॉर मी द बेस्ट पीपल हु हैव डन डेवलपमेंट, लाइक मैंने कॉलेज में डेवलपमेंट करी थी अच्छे से. आई इवन राइट नाउ अगर मान लीजिए कि किसी का कोई डिप्लॉयमेंट आया, कुछ कंटेनराइज कर रहा हूँ मैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. अनलेस कि कोई ऐसा है कि एप्लीकेशन में इशू है तो मुझे जाना पड़ेगा डेवलपर्स के पास, वरना आई डू हैंडल इट माई सेल्फ. कि एक पैकेज का इशू हो गया या फिर कुछ इधर उधर करना है, आई कैन डू इट माई सेल्फ, एंड देन आई कैन डू द ऑपरेशंस पार्ट वेरी इजीली, बिकॉज दैट इज व्हाट आई
like I would not say expertise, but मतलब वही आता है मेरे को बहुत अच्छे तरीके से. But dev आता है तो it gives me an edge. So I think that's the best path according to me. And then of course SRE comes as an ops. They also have an idea of somewhere कि application कैसे deploy हो रहा है वगैरह वगैरह. Linux admins then would have I think slightly different path. But हाँ, सब में कहीं ना कहीं आके ये combination अगर आपका सूट करता होगा कि आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है किसी भी एक लैंग्वेज में, you know concepts about it, it would be much easier for you to do things over here. जैसे आप कहते हो कोडिंग आनी चाहिए, तो सब भी ये भी आज का एक क्वेश्चन है कि अगर कोडिंग अवॉइड करनी है तो देन कैन वी स्टार्ट विद क्लाउड और डेवलप्स. तो कोडिंग लाइक जिसको लाइक बेसिक डीएसए समझ आता है, बट एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर जितनी हार्ड कोडिंग नहीं आती, दे कांट बिल्ड प्रोडक्ट बिकॉज मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट है सिमिलर, एक सेम स्टैक पे बने, बस फ्रंट एंड सबका चेंज होता है बट बिल्डिंग लॉजिक बिहाइंड सब सेम है. तो डेवलपर चाहते हैं कि यार मुझसे कोडिंग नहीं हो रही, तो शुड आई कम टू डेवऑप्स और कम टू क्लाउड, व्हाट विल बी द सेफ ऑप्शन फॉर देम? मतलब एज एन फ्रॉम सेज एंड सेफ कोर में नहीं जाना है, बट यू कैन डू दैट. बट हाँ मतलब डेवलपमेंट करके और थोड़ी बहुत बिल्कुल बिना किए मत आओ मेरे हिसाब से कि सिर्फ AWS पढ़ लिया या फिर सिर्फ कोई क्लाउड पढ़ लिया या फिर सिर्फ कुछ टूल्स पढ़ लिए एंड यू कम टू यू से कि मेरे को डेवऑप्स इंजीनियर बनना है. आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट शुड वर्क. यू शुड हैव अ होलिस्टिक आइडिया ऑफ थिंग्स. व्हाट आई यूजुअली से कि एक टी वे ऑफ लर्निंग रखो कि सबका आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा. दैट्स व्हाट आई ट्राइड आल्सो डू कि भाई लैंडस्केप बहुत फास्ट चेंज हो रहा है. अभी LLM ऑप्स आ गया, ब्लॉकचेन आ गया. मैं बोलूँगा कि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है सबका. अगर मुझसे कोई बात करेगा तो आई कैन टॉक बेसिक विद देम. आई माइट नॉट नो एडवांस अभी. आई एम ट्राइंग टू स्टडी मोर एंड मोर क्योंकि ये कंटिन्यूस लर्निंग वाली चीज़ है. बिकॉज मार्केट इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट. लैंडस्केप CNCF में यार हर महीने में एक टूल कोई ना कोई आ जाता है. मान लो इतना बड़ा लैंडस्केप हो चुका, आप कितनों का ट्रैक रखोगे? बट the ones relevant to you try to, that's why I said read blogs, watch videos अपना एक टाइम फ्रेम में, and again by T-shaped learning में have a basic idea of something and then deep down into one thing. That's what I did. So let's say for me how I started was कि मेरे को containers बहुत पसंद थे. I used to play around a lot and my first ops का जब मैंने काम किया होगा that was production EKS. यार college 4th year में था मैं and I got that from someone as a freelancer. And हाँ I would say कि यार so I'm good go slightly off track. बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फ्री में काम करना is bad वगैरह वगैरह. तो ये जो डिबगिंग वाला चीज़ जो मैं करता था कम्युनिटीज़ में, इसके लिए कभी पैसा नहीं चार्ज किया मैंने. मतलब मांगता ही था, मुझे पता ही नहीं था इसके पैसे मिल भी सकते हैं. someday someone paid me and I was like अच्छे से पैसा मिल सकता है and then it became a thing. I understood कि ये लोग clients भी बन सकते हैं मेरे. But free helping मैं अभी भी करता हूँ. And sometimes you won't get monetary benefits but you get other benefits. I have earned a lot of stacks not from these events but from these free helps. And right now the bag I use is also a free gift only. कि उन्हें कुछ फट गया था Kubernetes पे, I went thanks to Satyam, he linked me with them, I helped them out fix it and they told me एक टोकन भेजेंगे and I was okay मिल जाएगा. I was in Bangalore, I came home and पापा ने देखा था कि एक बेटा तुम्हारे लिए एक बैग आया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी महंगा बैग है. and I was like अच्छा मैं आऊँगा तो मैं देखूंगा. and I saw and I came, it's a Mukobara bag and I had planned कि अभी खरीदूंगा because I wanted to change my bag and yeah destiny free का बैग. हाँ बिल्कुल. मतलब यही होता है जब भी कोई फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में किसी को आइडिया तो होता है नहीं कि शुड आई आस्क फॉर द मनी और नॉट. बट एक होता है कि हमारी की नीश स्किल्स डेवलप होती है और ब्रशअप होती रहती है साइमल्टेनियसली कि काम आ रहा है, नया आ रहा है. बट कॉलेज ग्रेड्स को होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट कि हम नया काम ले, भले अभी पैसे नहीं मिल रहे बट काम सीखेंगे तो आगे जाके वी कैन डिमांड बिकॉज आर ब्रश्ड अप आर बेसिक दैट मच स्ट्रॉन्ग कि अब हमें पता है हम मांग सकते हैं बिकॉज वी नो आर फुट आर स्ट्रॉन्ग. आपने अभी जैसे CNCF के बारे में बताया और आई ऑलरेडी नो एंड वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड थ्रू दैट कम्युनिटी ओनली. सो आप क्या कहेंगे जैसे कि अगर कोई भी आजकल मीटअप्स होते हैं तो हाउ मीटअप्स आर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड इवन अटेंडिंग. सो लाइक इधर लाइक कंपटीशन भी हो गया काफ़ी सारे मीटअप्स के आपस में. शुड बी इट बी गुड टेक कि कंपटीशन होना चाहिए बट क्या नहीं होना चाहिए? A healthy competition is always good. मेरा लाइफ का एक राय कि मेरे को एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा चाहिए जीवन में. फॉर एग्जाम्पल नॉट इन माई स्टडीज में तो मैं वाज ठीक ठाक चल गया, वो निकल गया. बट व्हेन आई केम इनटू लाइक प्रोफेशनल वाला चीज़ तो मेरे बचपन का दोस्त दक्ष साथ में डेवलप्स करते हैं. हेल्दी कंपटीशन रहा है हमेशा. वो सीखता है, मुझे सिखाता है, मैं सीखता हूँ, उसे सिखाता हूँ. दैट्स हाउ हेल्दी कंपटीशन वर्क्स कि आगे निकल रहा है, आगे सिखा देगा. कुछ कोई डाउट हो गया भाई. सो फॉर मी डेवऑप्स का मेरा जो शुरू का डिबगिंग वाला फेज था ना, आई यूज नॉट मतलब ग्रुप से नहीं डालता था मैं. मेरे 3-4 लोग पहचान के थे जो मुझे पता कि डेवऑप्स कर रहे हैं, सीनियर्स हो गए, सेम बैच के हो गए. एंड आई यूज टू जस्ट मैसेज देम कि भैया यहाँ अटक गया हूँ या फिर भाई यहाँ अटक गया हूँ. एंड दे वुड बी हैप्पी टू ऑब्लाइज कि आओ कॉल पे आते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई बिल्ट फॉर अदर पीपल ऑल्सो. अभी भी अगर मुझसे कोई जूनियर आता है तो आई ट्राई टू, इफ आई हैव टाइम, आई ट्राई टू गो विद देम ऑन अ कॉल एंड हाँ भाई हेल्प करता हूँ मैं.
बहुत कम हो गया, बट आई ट्राई टू डू दैट. सेम अप्लाइज फॉर कम्युनिटी ऑल्सो. लाइक एवरीवन शुड रन अ कम्युनिटी. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक साथ रन कर दो, बट हाँ अपने अपने फेज में चलाने का ट्राई टू कोलैबोरेट एज मच एज पॉसिबल. एज अ ऑर्गेनाइजर व्हाट आई अंडरस्टूड, कंसिस्टेंसी इज द की. जितना कंसिस्टेंट रहोगे यू वुड सी योर ऑडियंस वुड आल्सो बिकम कंसिस्टेंट, एंड स्लोली एवरीथिंग ऑटोमेटिकली आई थिंक लाइन्स अप. व्हेन लेट्स से यू शुरू में स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं, स्लोली ना वो स्पॉन्सर ढूंढना वुड बिकम ईजियर बिकॉज पीपल आर सीइंग ओके इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने लोग आ रहे हैं, दे हैव अ गुड कम्युनिटी बिल्ट अराउंड इट. People automatically start coming in, more professionals start coming in. As an attendee for any conference or meetup, पहले I used to go and attend these a lot of talks. Good thing, बहुत सीखा वहाँ से ही मैंने. But nowadays I see a lot of talks being repeated across meetups, across conferences. So what I do is, अब मेरी आदत हो गई है. Sometimes organizers are not happy with it also. यार ये बाहर खड़ा है, 4 लोग और लेके गया और गप्पे मार रहा है. हाँ. बट वही है ना, नाउ मैं एम इज नेटवर्किंग. मैं इंट्रोवर्ट आदमी था जब खुद में फोन में लगा रहता था मीटअप्स में भी जाके. अब मैं जाता हूँ किसी भी रैंडम आदमी को हेलो बोलने में मेरे को डर नहीं लगता कि बस जाए हाथ मिला लिया और बातें शुरू कर दी. कुछ ना कुछ रैंडम टॉपिक तो मिल ही जाएगा, टेक मिल जाएगा, नॉट टेक मिल जाएगा, कुछ तो कॉमन इंटरेस्ट होगा ना भाई. कुछ भी छेड़ दो एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. इन द लास्ट मीटअप, सो अगेन सिद्धार्थ सर एंड मनोज सर, सो दे हैव बीन एक्स स्पीकर्स एट आवर मीटअप्स एंड आई मेट देम इन द लास्ट मीटअप. अच्छी खासी बात हुई. ऑब्जर्वेबिलिटी समथिंग आई लव वेरी मच. मेरे को बहुत मजा आता है वो करने में. ऑब्जर्वेबिलिटी एंड CSPM आर टू थिंग्स दैट आई लव वेरी मच. मतलब जब हम लोग का मीटअप हो गया, हम लोग बाहर बैठे थे, आई वॉज जस्ट सिटिंग विद हिम. आधा 1 घंटा बस ऑब्जर्वेबिलिटी का बातें करिए कि उन्होंने कितना बड़ा माइग्रेशन किया वगैरह वगैरह, हाउ ही डिड इट, क्या इश्यूज उन्होंने फेस किए, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे, नए टूल्स के बारे में सुना. ओपन टेलीमेट्री चल रहा था, ही मेंशन समथिंग अबाउट ओपैम. उससे पहले नहीं सुना था मैंने. गया घर पे जाकर गूगल किया, समझ में आया कि अच्छा ये भी एक बडिंग टूल है दैट्स कमिंग अप इन द मार्केट, होपफुली इट शुड टेक अप. तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है अराउंड दीज. सो आई थिंक इफ यू कैन वॉलंटियर, इफ यू कैन ऑर्गेनाइज और अटेंड तो करो भाई लोगों से मिलने के लिए. जितने लोगों से मिलोगे उतनी बड़ी नेटवर्किंग होगी. कब कौन कहाँ काम आ जाए पता नहीं. यहाँ तक कि मेरे को मतलब जीवन में एक ही काम आया है, बट ठीक है यार. एक बंदा था आज से 2 साल पहले मिला था किसी के ACD में, एंड 2 साल बाद समहाउ दे केम ऑन बोर्ड एज अ क्लाइंट. गुड. मतलब डेस्टिनी कहाँ लेके जा सकती है यार. मिलो जितने लोगों से मिल सकते हो, मेक फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. बिल्कुल. लाइक हमारा भी ऐसे ही पहली बार मीटअप हुआ था कि मेरे को पता नहीं था कि क्या होता है मीटअप. आई वॉज न्यू इनटू द Kubernetes एंड ऑल एक्स, बट बीइंग इन DevOps, सो आई जस्ट वेंट कि लाइक क्या मीटअप होता है, क्या प्रोसेस होता है. आई जस्ट रैंडमली वेंट. मैंने कुछ अप्लाई भी नहीं किया था. आई जस्ट वेंट देयर. ही वॉज देयर एज एन ऑर्गेनाइजर. तो बट ही वेंट वेरी फ्रीक्वेंटली. हमारी बात भी नहीं हो पाई थी. बैंगलोर निकल गए थे, इनको कुछ काम था. और रिसेंटली उसके बाद मेरा कॉन्टीन्यूस कनेक्शन बना रहा. सो आई ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम द फोक्स जो मार्केट में ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो चुके हैं, मोर देन 15+ एक्सपीरियंस पे है. तो उनकी जो नॉलेज होती है हमें काफ़ी हेल्प करती है कि हम उसको ला के इम्प्लीमेंट करके लर्न करके अपने रियल टाइम पे अप्लाई करके चेक कर पाए कि अच्छा हम वी लर्न दैट, हमने वहाँ सुना, हमने सब किया, उसको अप्लाई किया, नाउ वी आर गुड टू गो. हमने अपना स्किल ऐड कर लिया फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंसेस. सो अब हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा जैसे आपने लास्ट इवेंट कराया, सो आप क्या इनटेक रखोगे. लाइक इवेंट कभी इसे आप कभी चेक करते हो कि यार ज़्यादा नंबर काउंट आया, कि स्पीकर अच्छे थे, कि कभी नीचे होते हैं, तो हाउ यू वुड टेक दैट थिंग कि काउंट्स ऊपर जा रहे हैं. डज यू लाइक फील लाइक काउंट डज मैटर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी और इन टर्म्स ऑफ लाइक द स्पीकर, हाउ द स्पीकर्स आर कमिंग, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग डज इट मैटर? दिखाने के लिए तो चाहिए. एज ऑर्गेनाइजर से तो बता रहा हूँ, इफ यू वांट और लाइक मोर स्पॉन्सर्स, मोर वेन्यूज, which we of course always want कि भाई मतलब यार फ्री का वेन्यू, फ्री का खाना मिल जा रहा है. अगर मतलब we are able to get it sponsored, it's better. There have been times when like all my co-organizers are at the same brainwave वाला चीज़ कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो we pitch in as money. मतलब so shout out to my one co-organizer सत्यम. मतलब वो स्टूडेंट है यार, और उसने जो पैसा कमाया उसमें से वो pitch in कर रहा है. Think about it. या द स्टूडेंट ही सेइंग कि भैया हाँ मुझे भी करना है कुछ कंट्रीब्यूट, एंड देन वी पिच इन. शुरू के हमने इवेंट्स में पिच इन करके ऐसे खाना मंगाया, एंड देन वी वर लकी इनफ कि as sponsors started coming in, they started sponsoring food for us. We are like always gratitude for them कि मतलब thank you so much. बट वो नंबर्स आपको दिखाने पड़ेंगे वहाँ पे लोगों की, देखो हमारे इतने लोग लेके आ रहे हैं, इस टाइप की ऑडियंस लेके आ रही है, बिकॉज एवरी कंपनी हैज ऑफ कोर्स इफ दे आर स्पॉन्सरिंग दे आर आल्सो लुकिंग सम ROI ना. डेफिनेटली. तो दे नीड लाइक प्रोफेशनल्स आ जाए, इतने स्टूडेंट आ जाए. सो वी ट्राई टू गिव अ मिक्स ऑफ इट. और वो नंबर अप डाउन होता है. वी लाइक लास्ट मीटअप 180-190 अटेंडीज, उससे पहले वाले में 40-50 अटेंडीज. सो यू सी द स्टार्क डिफरेंस. Right. So that always happens, but that has stopped affecting us. We are like कि speakers is something I manage. तो मैं personally लोगों को reach out करता हूँ. We have a CFP bomb, लोगों भरते हैं, मुझसे भी लेके आते हैं. But
जो खुद बुलाने में ना लोग को डर लगता होगा कि हाउ शुड आई मैसेज ही इज वीपी और ही इज डायरेक्टर और ही इज सीटीओ सीईओ सीएक्सओ लेवल। मेरे को नहीं लगता डर, मेरा खत्म हो गया। लिंक्डइन है, मैसेज किया 10 करूंगा, 5 रिप्लाई कर ही देंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी टू oblige टू कम एंड शेयर देयर नॉलेज विद देम। एवरीवन वांट्स टू शेयर, यू जस्ट नीड टू गिव देम प्लेटफॉर्म। एंड ऐसे करके आई हैव मेट क्वाइट नंबर ऑफ पीपल जो सीएक्सओ लेवल के रेंज में आते हैं, एंड उनसे बात करने का फिर एक अलग मजा है। यू शुड लाइक कोलैबोरेट विद ऑल लेवल ऑफ पीपल। अलग अलग लेवल से अलग अलग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ बताओ, एज एन सी टी ओ, लाइक कई या तो सी टी ओ छोड़ो, सब नीचे लेवल पे आते हैं। पहले टीम लीडर होता है या मैनेजर होता है, तो व्हाट शुड बी योर टेक कि टीम को साथ लेके चलना चाहिए, टीम के आगे खड़ा होना चाहिए, टीम के पीछे खड़ा होना चाहिए? कई बार होता है ना कि जैसे किसी ने लीड किया होता है तो कई लोग हमें फीडबैक भेजा, ये तो हम बैक बेचिंग नहीं बोलूँगा, बट कॉर्पोरेट में जैसे होता है कई बार पसंद नहीं आती चीज़। तो व्हाट शुड बी, अगर मेरे को मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप मेरे सीनियर हो, तो मेरे को आपकी चीज़ पसंद नहीं आई, तो जाके सीधा बोल देना चाहिए या देख के बोलना चाहिए सबके सामने कि किसके साथ बैठे, अब पता चले उल्टा बोलो, मतलब उसके कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, पॉइंट है। तो क्या टेक है? जैसे मेरे साथ होता था, मैं अपना पहले एक चीज़ बताता कि मेरे को कभी आया तो मैं उसको साइड में बाद में उसको बताया, कैबिन में भले चले गए लेके कि सर ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो यार मेरे को इस पॉइंट पे हम कॉन्ट्राडिक्ट है, मैं नॉट फाइन कि आपने सब कुछ बोला। तो वो बातचीत होनी चाहिए हमारे लीडर्स के साथ कि क्या होना चाहिए, कि अगली क्या ग्रोथ आनी चाहिए फिर एक पर्सन में। आई हैवंट वर्कड इन एनी स्ट्रक्चर्ड कंपनी आज तक। दिस इज द वन दैट वी आर बिल्डिंग टुगेदर। तो ऑन द गो सीख रहा हूँ मैं। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि देखो, कंपनी में ये अगर बोलूँगा कि सबको दोस्त बन के रहो, वुड नॉट बी राइट, क्योंकि आज है कल साथ में नहीं होंगे, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स नो वन नोज। बट हाँ, कीप कम्युनिकेशन चैनल ओपन एवरी टाइम। तो सीधा फंडा क्या होता है कि, लेकिन एक दोस्त का रूल है जो फॉलो करो, एज यू सेड, कि पब्लिक में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इवन इफ ही सेइंग रॉन्ग है, कुछ हो गया, डांट दिया, दैट हैपेंस। लेट्स से क्लाइंट ने आपको कुछ बोल दिया, तो अब जाके उसको उल्टा तो बोलोगे नहीं, चला जाएगा। तो यू हैव टू मैनेज ना, सुन लो। लेट्स से आपकी टीम में कोई गलती कर दिया, कुछ कर दिया, डोंट लाइक, मेरा सीधा सा मानना है, नेवर बैश एनीवन पब्लिकली। प्राइवेट में जाओ, आराम से सॉफ्टन योर वर्ड्स एंड समझाओ उनको, दे वुड अंडरस्टैंड। मतलब गुस्सा करने का कोई सेंस नहीं बनाता। इफ यू में गुस्सा करोगे ना, तो यूजुअली वो जो सामने वाला बंदा है वो शायद चिढ़ ही जाएगा आपसे। इट्स बेटर कि पहले समझाओ, डिस्कस विद देम, पहले अंडरस्टैंड कि उनका क्या है, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी। मुझसे प्यार से पूछा जाता है, वी डिस्कस कि हाँ ये मिस्टेक हो गया मुझसे, फिर ऐसा हो गया। ऑफ कोर्स, सो सी माय को-फाउंडर इज लाइक वे ओल्डर देन मी, नॉट वे ओल्डर बट ठीक है, मतलब वो 10 साल एक्सपीरियंस है, मैं 3-4 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस मैक्सिमम। So you understand the difference, and he has worked in enterprise a lot. He has worked across companies. I think he has Visa, and then I think Mastercard probably, and उससे पहले I think TCS, मतलब ऐसे 3-4 enterprise से होके आए। Right. तो he has more experience around it. तो ये सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ कि hiring कैसे करना है। I take tips from him because मेरी responsibility है, but अगर कोई गाइड मिल जाए आपको तो उससे लाइफ ईजी हो जाती है। I have always had a rule कि हर चीज़ के लिए एक गाइड रखो जीवन में भाई, किसी को अपना गुरु बना लो, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। खुद जाओगे, रास्ता थोड़ा कठिन होगा, कोई रहेगा साथ में, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। मतलब थोड़ा ऑफ ट्रैक, मेरा भाई मेरे को एक चीज़ बोलता है, बहुत पहले से बोल रहा है, जब मेरे को समझ में नहीं आती तब से बोल रहा है ये बात वो, कि भाई देख, अपनी गलती से सीखेगा, ठीक है चलता है, दूसरों की गलती सीखेगा ना, 4 कदम आगे जाएगा बाकी से, बिकॉज दैट इज ईजियर। तेरे को पता है कि ये गलती तो नहीं करनी है मेरे को। दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम एल्डर्स, नहीं बोलूँगा यार, अपने पीयर्स, जिससे भी सीखने को मिले सीख लो, जो सीखने को मिले सीख लो चुपचाप से। गलत है तो बाद में डिस्कार्ड कर देना, सुनो सबकी, करो अपनी। दैट्स हाउ इट शुड वर्क। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ होता है ना कि हमने दूसरों की मिस्टेक देख ली और उसने क्या अप्रोच ली, तो हम उसको फिर करते कि वो अप्रोच, क्योंकि वो सक्सेस हुई थी। तो इस पॉइंट पे आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट कि अप्रोच को फॉलो करना चाहिए कि उस गलती से कि नई वे और भी निकालनी चाहिए, कि ये दो टर्मिनोलॉजी, आइदर फॉलो द फुटस्टेप्स और जस्ट लर्न इट एंड ट्राई समथिंग दैट ओन, कि खुद का कुछ ट्राई करा, कि हमें पता है देखो एक वे है जिससे सक्सेस आ सकता है हमारा, बट हमें पता है क्या पता उससे अच्छा कोई और भी वे हो जो सक्सेस की तरफ ले जाए उस चीज़ में। तो क्या हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें क्रिएटर बनना चाहिए उसी टाइम पे? आई थिंक अगेन वही वापस से रिपीट करूंगा, सुनो सबकी, करो अपनी। सबसे सीख लिया, अभी 4 लोगों ने 4 अलग चीजें बताई तो, और चारों सक्सेसफुल है, चारों को तो फॉलो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि सी व्हाट डिड दे डू राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वर डूइंग, एंड उसमें से पिक करो कि भाई इन चारों को मिला के आई थिंक ये शायद से गलती करोगे, ऐसी बात नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं है कि शायद से उसके लिए जो काम करेगा तुम्हारे लिए काम कर ही जाएगा, ऐसा रूल तो है नहीं।
गलती तो कर ही सकते हो, बीच में कहीं भी मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, तो कंबाइन ऑल ऑफ देम, ट्राई टू सी क्या बेस्ट था उनका एंड यू ट्राई टू यूज देम एंड होपफुली इफ यू डू इट राइट सही जाएगा, बाकी तो सब सही है उसके हिसाब से। आशीष, मेरे को चीज़ आपसे पूछनी है, जैसे मैंने पहले भी, जैसे कि कोई आपका कोई गुरु या मेंटोर हो जिसको आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया, कि उससे आपने बहुत सीखा और आप चाहते हो कि यार ऐसा ही बनना है एक बार, लेकिन बनना है तो दूसरी बात है, बट ये एक रोल मॉडल टाइप समथिंग है मेरा, कि मेरे से बहुत चीज़ें सीखी है लाइफ में। इंटरेस्टिंग वन, एक्चुअली क्योंकि एक नहीं है, आई हैव बीन फॉलोइंग डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ, कि और सब वही है मेरा फैक्टर है कि सबका जो बेस्ट वाला एंगल है ना उसको पिक करने की कोशिश करता हूँ कि मैं व्हाट इज दैट पर्सन डूइंग राइट। फॉर एग्जाम्पल, सो आई हैव दिस रूल इन माई लाइफ, आई कीप माई प्रोफेशनल लाइफ एंड माई कम्युनिटी लाइफ ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है। सो आई लर्न दिस थिंग, आई थिंक what I feel, Sandeep Das is the guy, if you follow his YouTube you can find him, I think he also does the same and he has been doing pretty good around that कि दोनों अलग रखो and earn from your professional life and community life ना, बस वो चुल की वजह से है कि भाई करना है, I want to share with it because हमने भी यहीं से सीखा है, we have met a lot of people over here, तो we just want to give back, यहाँ से ले लिया, यहाँ पे दे दिया, लोगों से मिले वगैरह, ऐसे ही और भी अलग अलग लाइफ स्टेजेस पे रहे हैं, मतलब सीखने के लिए तो बहुत लोग रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गुरुमूर्ति सर, he's I think based out of London and first time when I met him, जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था जितना उनका एक्सपीरियंस है उतनी मेरी उम्र है, मैंने बोला आपसे बहुत सीखने को मिलेगा, एंड फुल फ्रैंक है, बहुत अच्छे से बात करेगा एंड उनसे बहुत सीखने को मिला, हिज वे ऑफ स्पीकिंग, लाइक बहुत लोगों से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ मैं, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बहुत लोगों को सीखा कि भाई लोगों से कैसे बातें करते हैं, हाउ टू वेल ड्रेस, कपड़े नहीं पहनता था मैं, दिस इज डिफरेंट, पहले बहुत अलग था, तो फिर मैं कपड़ों से अपने दोस्तों से इंस्पायर हुआ, उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग करवाई, गॉट बेटर, तो या changes with every stage in life, for everything I look up to different people. So that's it about this all podcast. So thank you so much Ashish for showing up and thank you so much आपने अपना insights दिया बाकी audience के लिए जो उसको देखेंगे सीखेंगे, अब उनका क्या intake रहेगा, so कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस के लिए? यार बस सीखते रहो और मचाते रहो, that's how it should be, that's what I have been doing. सीखते रहो मचाते रहो, एक नई टैगलाइन आ गई इस पूरे पॉडकास्ट के लिए, सीखते रहो मचाते रहो। सो दैट्स इट फॉर दिस होल पॉडकास्ट, आई होप यू आर लाइक दैट, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग क्लाउडेड भाटिया साहब। और भाई कुछ बोलना है? नहीं, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब एज एवरी वीडियो सेज, ये तो जरूरी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर नाउ फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम सेइंग नोटिफिकेशन ऑन करना, बेल आइकन को प्रेस करना, उससे ये होगा कि पॉडकास्ट एक ऐसी सीरीज जो मैं दिल से चाहता था उसको क्रिएट करना, बिकॉज ऑफ आशीष ओनली आई हैव मेट सो मेनी फोक्स राइट नाउ, और इवन जो आई वुड से जो मेरे आई वुड से लाइक गॉड फादर इन इंडस्ट्री, इनके वजह से मैं आया, जिसने मेरा ट्रेजेक्ट्री पूरा चेंज कर दिया, मेरे बारे में बाद में बताऊंगा, बट मेरी कैसे ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई, तो होते हैं कई लोग मिलते हैं, तो उन्हीं लोगों को मैं लाना चाहूँगा इस पे चैनल पे और पॉडकास्ट पे, सो दैट आप सब सीखो, आप सब जानो, और वो हमारे बीच वाले ही लोग हैं, बट आप उनको शायद से डेली मिल भी चुके होंगे जो मेरे नोन टू में हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस होल वीडियो, सो सी यू सून, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग क्लाउड विद भाटिया साहब।